by 1.7 multiply by 50%। यहाँ पर 50% क्यों यूज किया गया, 100% हम यूज करते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब Assalamu alaikum, my name is Raza and welcome to my YouTube channel Concepto Chemistry. Today I am going to discuss with you electronegativity, first year chemistry and chapter 4. So what we will study in this article, what is the table of content that I will discuss in this article. I want to show you first. So first one is the definition, that what is the definition of electronegativity. Next one is the difference between electron affinity and electron negativity. Most of the students did not understand the concept of electronegativity and electron affinity. Okay. And next one is a determination of ionic character, that how we can determine the ionic character with the help of electronegativity. The more next is the trend in predictable, that is the most important point in this article. And next one is the factors that affect the strength. Okay, so these are the main points, but we will discuss many other points along the side of this main table of content. Okay, so but if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe and like my page on the Facebook with the same name, Concepto Chemistry. And adding more, I have also launched my course on Air School. Okay, so which you can search with the organicchemistry.airschool, and you can also find the course of organic chemistry on Udemy. Okay, so let's start the article properly. So first of all is the definition. What is the definition of electronegativity? The tendency of an atom to attract a shared pair of electrons towards itself in a molecule is called electronegativity. Electronegativity in actual is the tendency of an atom to attract electron. Okay, so it means that if an atom is having more forces of attraction or stronger forces of attraction, then its force of attracting electrons towards itself will be more. So in other words, I can say that अगर किसी की पावर, किसी की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी ज़्यादा होगी, तो मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी. क्लियर? सो नेक्स्ट चलते हैं. दीज आर द एलिमेंट्स एंड दे आर electronegative values of these elements. Okay, so you can take screenshot of this slide, or you can write down these values on your notes or your register. Okay, so first one is the cesium, then iodine, bromine, and chlorine and fluorine, and these are the values of electronegativity. Remember one thing, that maximum value of electron negativity is for fluorine, and that is 4.0. okay, and other electronegativity values we calculate with respect to this element. Okay, so next चलते हैं. More electronegative, more it will attract electron to itself. It means that अगर कोई जितना ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी, उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की. ओके, सो जिस तरह क्या कहते हैं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मैक्सिमम 4.0 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड में एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि ये पोलर है, तो फ्लोरीन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर या मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेता है, तो इसलिए फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. पॉलिंग स्केल. व्हाट इज द पॉलिंग स्केल एंड व्हाट इज इट्स रोल फॉर द electronegativity? Okay, so but here I have one question for you, that what is the difference between electronegativity and electron affinity? So you can comment in the comment section. Okay, let me tell. Actually, electronegativity is the reason and electron affinity is the result.
मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वजह और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका नतीजा। इसको मैं ऐसे अगर कहूं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आती है पहले और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आती है बाद। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू किसी की ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर किसी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू कम तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम है। क्लियर है? सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज द रीजन। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। Pauling determine electron negativity values from the difference between expected and experimentally determined bond energy values. They determine the bond energy values experimentally, and then they have already expected values for the bond energies. Then they take the difference, and that difference they name electron negativity. Okay, so next चलते हैं। ये एक स्केल है जी, पॉलिंग स्केल जिसे कहते हैं। इसमें क्या है, सीजियम को सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दी गई है, वो है 0.7, एंड फ्लोरीन इज विद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दैट इज 4.0। ये एमसीक्यू आ जाता है बोर्ड के एग्जाम में भी और एंट्री टेस्ट में भी कि सीजियम की वैल्यू कितनी है, या मिनिमम किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है और मैक्सिमम किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। सो मूविंग नेक्स्ट, लोएस्ट वॉल्यूम्स for cesium and highest for fluorine and other elements are determined using the difference. So दूसरे जो elements हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसी स्केल के रेफरेंस से ही डिटरमाइन की जाती है। सो इस तरह पॉलिंग स्केल जो है बहुत वाइटल रोल प्ले करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में। तो नेक्स्ट है जी पॉलिंग स्केल फॉर आयनिक कैरेक्टर। किस तरह हम आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं पॉलिंग स्केल से या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। हियर इज द फॉर्मूला थ्रू विच वी कैन डिटरमाइन द आयनिक कैरेक्टर। सो व्हाट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 50%। यहाँ पर 50% क्यों यूज किया गया, 100% हम यूज करते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ये वाला, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.17 0.18 की रेंज में आए तो आपके पास क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर कम होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है किसी कंपाउंड में। और अगर ये हो 3.2 3.3 इस रेंज में हो तो फिर क्या होता है, फिर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है। मतलब इन दोनों स्टेज में एक ज्यादा है तो एक कम। ओके, लेकिन इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में एक वैल्यू ऐसी भी है जहां पर 50% आयनिक कैरेक्टर होता है, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और वो पॉइंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल टू 1.7। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 के बराबर हो तो फिर आपके पास जो आता है ना आंसर, वो 50% होता है। मतलब उस पॉइंट पर 50% आयनिक कैरेक्टर होता है, 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ओके, तो इसको हम इधर से भी देख सकते हैं कि अगर इधर हो क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 और नीचे भी 1.7 है तो वो कैंसिल होकर आपके पास 50% आयनिक कैरेक्टर आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। कैन यू डिटरमाइन द परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर? यस, वी कैन डिटरमाइन। सो हाउ? हियर इज द रिलेशन थ्रू व्हिच वी कैन डिटरमाइन द कोवेलेंट कैरेक्टर आल्सो, बट वंस वी शुड बी प्रोवाइडेड विद द आयनिक कैरेक्टर। लेकिन हमें इससे पहले आयनिक कैरेक्टर का पता होना चाहिए। आयनिक कैरेक्टर प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर इज इक्वल टू 100%। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ये कंपाउंड है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है 2.5 और फ्लोरीन की है 4.0। हम इसका डिफरेंस ले लेते हैं, वो आपके पास आ जाता है 1.5। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो आया आपके पास 1.5, उसको मैंने इस फॉर्मूले में पुट किया तो ये आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय 1.7 मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, सो ये मेरे पास आंसर आता है 44.11। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 45%। सो इट्स मीन दैट वी हैव 45% ionic character in hydrogen fluoride. So if I want to calculate the covalent character also, so how can I calculate? I can calculate using this relation. Okay, so 45%, put this 45% here. Okay, so plus covalent character. Then 45% will be differentiated
from 100%. So I will get 55% equal to the covalent character. So in this way we can calculate the ionic character and the covalent character from the electron negativity difference. Okay, so next होते हैं. Here is the electronegativity difference and here is the ionic character with respect to this formula. Okay, so next चलते हैं. So this is the general trend in the periodic table for the electronegativity. Okay, so it is the general trend. There are some complexities also existed in the periodic table, but this is the general. Okay, on the ground, this is the trend of electronegativity along the group and along the period. Okay, so next चलते हैं. What is the reason why electronegativity increase in period from left to right? Okay, because while going from left to right, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं या पीरियड पे जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज. एटॉमिक नंबर इंक्रीज मींस द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इंक्रीज, forces of attraction become strong. Okay, so nucleus will have a strong grip over the electrons. Either they are close to the nucleus, either they are in the valence shell. So next one is no new shell is introduced, and the more interesting thing is that no new shell is added while we move from left to right. So न्यूक्लियस पर तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ रही है, न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, लेकिन बाहर से कोई नया शेल ऐड भी नहीं हो रहा, तो उस न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रिप स्ट्रांग होती जा रही है. ठीक है, मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जा रही है. सो नेक्स्ट वन इज शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि न्यू शेल आ नहीं रहा ने, मतलब कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो वैसे का वैसे ही है, वो कांस्टेंट रहता है. अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़े तो क्या होता है, रेडियस बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा. सो नेक्स्ट वन इज स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसकी हमने रीजन देख लिया कि क्यों स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि रेडियस बढ़ नहीं रहा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की ग्रिप पड़ रही है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांगर होती जा रही है. सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस व्हाइल वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, electronegativity increase. Okay, so I try to present these results of the electronegativity in period with the shapes, that how these shapes are growing from left to right. Okay, so now I will discuss with the respect to the group. So why electronegativity decrease when we move from top to bottom in group? Okay, so what are the reasons? Atomic number increase, as in the period. Here also atomic number increase, mean power grip of the nucleus increase. Okay, nuclear charge on the nucleus increase. But what next? New shells are added. But here new shells are added. नए shells add हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आते हैं नए shells में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर ग्रिप क्या हो जाती है, वीक हो जाती है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज. और जब नए इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऑलरेडी जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो उनको रिपेल करते हैं. नए शेल ऐड हुए हैं ना, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन थे वो उनको रिपेल करते हैं. वो जिस तरह कोई लाडला बच्चा होता है ना वालदैन का, तो वो दूसरों को अपने वालदैन के नज़दीक नहीं आना देता, दूसरे भाइयों को या बहनों को. तो इसी तरह का होता है सीन. जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं वो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं आने देते, वो उसको रिपेल करते हैं, और ये है शील्डिंग इफेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट होते हैं वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. सो ड्यू टू द न्यू शेल एडेड एंड द शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाता है. अब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज तो आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है. सो ड्यू टू दीज रीजंस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, electronegativity decrease, as you can see from these diagrams. Okay, so next होते हैं, what are the applications? Nature of the chemical bond. We can determine the nature of chemical bond with respect to the electronegativity. So how we can do this, I will discuss. It is based on electronegativity difference.
तो ये जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बेस पर हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज 0 to 0.3 देन इट विल बी नॉन पोलर। अगर कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स 0 to 0.3 रेंज है तो वो होगा नॉन पोलर। And next one is if electronegative difference is 1.7 greater than 1.7 then bond will be ionic। अगर electronegative difference 1.7 से ज़्यादा है तो वो bond ionic होगा, वो covalent नहीं होगा, मतलब कि वहाँ पर shifting of electron होगा। If electronegative difference is less than 1.7 bond will be polar। और यहाँ पर क्या है, covalent होगा और polar होगा। So next होते हैं। So ये मैंने स्केल डिज़ाइन किया है, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड के लिए। 0 to 0.3 तो नॉन पोलर, 0.3 to 1.8 तो वो है पोलर, और अगर 1.7 से ज़्यादा है तो वो आपके पास आयनिक आ जाता है। नेक्स्ट, ये आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है और ये आपके पास परसेंटेज आयनिक करैक्टर है जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, और यही नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड है कि क्या आयनिक करैक्टर कितना है और कोवेलेंट करैक्टर कितना है, और यही है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये मैंने आपको एक मतलब एडिशन, एक एक्स्ट्रा चीज बताई है समझने के लिए, टॉपिक से रिलेटेड भी है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर विल बी द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड ग्रेटर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। कहता है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, अब इसका मतलब क्या है, दो एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कब ज्यादा होगा, उसी वक्त ज्यादा होगा जब एक ही वैल्यू बहुत ज्यादा और एक की वैल्यू बहुत कम हो। ठीक है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रखता हो और इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, तो उसी वक्त बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, तो क्या होगा फिर, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज होगी। ओके, सो नेक्स्ट वन इज इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज लेस देन 1.7 देन बॉन्ड विल बी कोवेलेंट पोलर या म्यूचुअल शेयरिंग। तो कहता है अगर 1.7 से कम हो तो फिर क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा और म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। तो इसमें भी क्या है, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं जी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7 देन बॉन्ड विल बी आयनिक बॉन्ड। सो ये मैंने बातें आपसे पहले डिस्कस की हैं। फॉर एग्जांपल सीजियम टू फ्लोरीन है, बॉन्ड बना हुआ, ठीक है, डिफरेंस इनका कितना आता है 3.3, मतलब ये इस कैटेगरी में है, 1.7 से ग्रेटर है, तो ये आयनिक बॉन्ड है। सो स्ट्रांगली आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सीजियम फ्लोराइड। ओके, तो ये क्या है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। तो ये देख रहे हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आई है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, और वो कौन सा है जी, आयनिक है। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन मोनोक्साइड, इसमें डिफरेंस आता है आपके पास 1, और ये आपके पास किस कैटेगरी में आता है, इस कैटेगरी में। So polar covalent bond is present in carbon monoxide. Mutual sharing of electron exist करती है इसमें। So this was the article of electronegativity for the today. So if you find some good information from this article, so kindly give feedback. And if you have still a confusion or some difficulty regarding this article, you can comment in the comment section. I will absolutely respond to your query and will answer your question. Okay, so stay tuned and stay happy. Thank you.